चलिए, coming back to the new section that we have to start, that is section 81. किसी को section 80 से कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा. अच्छा, आंसर लिखा रहा था मैं, सॉरी. 80 पे आंसर लिख लीजिएगा. सवाल है कोई? इसी का आंसर लिखवा रहा हूं, दैट इज वो पैरामर वाला. एक पैराग्राफ कंक्लूजिंग फॉर्म में लिखवा रहा हूं, दैट इन द प्रेजेंट केस, लिखिए, इन द प्रेजेंट केस, in the present case, the paramer will not get the defense, of section 80. The paramer will not get the defense of section 80 as for the purpose of defense under section 80, as for the purpose of defense under section 80, the act must be an outcome of accident or misfortune. Accident or misfortune. It's the outcome of accident or misfortune. But in the present scenario, the fight resulting into death, cannot be called an accident. As the word accident shows something which cannot be anticipated. Whereas in fight, injury can always be anticipated. ठीक है, फुल स्टॉप. बेसिक समझा दिया है ना, सिंपल. चलिए, section 80 is a case of necessity. It's a necessity as a defense. Necessity is a defense. Necessity is a situation when some person do something in a particular circumstances with the knowledge. अगर हम necessity को समझे तो necessity क्या है? Done anything in urgency, I can say. Done something in urgency, or
thing that cannot be avoided. ऐसी कोई चीज जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता is known as necessity. What is section 81 saying? Let us go into section 81 and find out. What is section 81 saying? What do you mean by the word necessity for the purpose of section 81? चलिए सेक्शन 81 के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. Section 81, also known as doctrine of necessity. Nothing is an offense merely by reason of being done with the knowledge that it is likely to cause harm. First situation देखिए. Thing done with knowledge to cause harm. Thing done with the knowledge to cause harm if done without criminal intention. Second is done without criminal intention. To cause harm and in good faith without criminal intention. Done in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. Fourth is to prevent other harm to person or property. What does it mean? देखिए क्या है, necessity is a situation where the wrongdoer knows that he is doing certain. क्या खासियत क्या है इसमें? इसमें सबसे पहली खासियत क्या है? necessity को समझें तो सबसे पहले क्या है? The person who has committed the offense or who has committed the harm. ये harm word क्यों यूज किया? इससे एक सवाल आगे दिमाग में आ गया. अभी हम देखेंगे 81 में भी, 82 में भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे harm word यूज कर रहे, 87 में भी देखेंगे. They are not using the word injury. Who has done, who with the knowledge to cause injury. Injury भी तो यूज कर सकते थे. Injury is a harm to body, mind or reputation. But they, instead of using the word harm, वो injury, they are using the word harm. ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्यों? नहीं, इंटेंशन तो नीचे लिखा हुआ भी है. इंजरी इज अ हार्म, बट फिर भी वर्ड हार्म यूज कर रहे हैं, इंजरी यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि बाकी सब जगह इंजरी वर्ड यूज कर रहे हैं. अगर वर्ड इंजरी यूज कर लेते तो इंजरी पर से इज इलीगल. तो 87 फिर जनरल एक्सेप्शन में फॉलो नहीं करता ना. इलीगल्स कैन नॉट बी डिफेंस, है ना, इसलिए वर्ड हार्म यूज किया है. अगर वर्ड इंजरी यूज कर लेते तो जनरल एक्सेप्शन में इलीगल एक्ट्स को भी क्या हो जाता, डिफेंस की तरह यूज करते हैं. क्योंकि व्हाट इज इंजरी? हार्म कॉज टू बॉडी, माइंड और रेपुटेशन, है ना, एन एक्ट डन इलीगली. तो इंजरी इज ऑलवेज इलीगल, पढ़ाया था ना मैंने. तो इंजरी हमेशा इलीगली होती है. हार्म कैन बी लीगल और इलीगल, इसलिए वर्ड हार्म यूज किया. ऐसी याद वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया तो बता दिया. थिंग इज डन विद द नॉलेज टू कॉज हार्म. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? द रॉन्ग डूअर, द रॉन्ग डूअर causes harm with knowledge. That is, he is aware about the fact that he is causing harm.
जानबूझ के हम, नेसेसिटी में पहला क्या होता है, नुकसान हुआ होता है, किसी को नुकसान किया है किसी आदमी ने, बट वो ऑफेंस नहीं है, बट वो उसने जानबूझ के क्रिएट किया, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, द हार्म इज कोज्ड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, द हार्म इज कॉज्ड टू प्रिवेंट अदर हार्म। एक हार्म कॉज किया गया है टू प्रिवेंट द अदर हार्म, ठीक है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया है, वो हमको पता है, व्हाट इज क्रिमिनल इंटेंशन, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, और दूसरा गुड फेथ। तो नेसेसिटी, व्हाट इज नेसेसिटी, अभी क्लियर हो गया। नेसेसिटी इज अ सिचुएशन वेयर वन पर्सन कॉजेज द हार्म टू अदर पर्सन इन ऑर्डर टू सिक्योर द अदर हार्म। जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है किसी और नुकसान को बचाने के लिए, तो वो जो पहला नुकसान है वो माना जाता है डन एक्ट डन इन नेसेसिटी एंड देयर इज नो लायबिलिटी। तो वन हार्म इज डन टू प्रिवेंट द अदर हार्म, ठीक है। देन अगर हम इस चीज को शॉर्टलिस्ट कर लें, तो वन हार्म डन टू प्रिवेंट अदर हार्म, अब वन हार्म डन टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है, नॉट ऑफेंस, नॉट ऑफेंस। तो ये जो वन हार्म है इसको बोला फर्स्ट हार्म, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, अदर हार्म को हम क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो ये जो वन हार्म है ये जो है ये इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, will not be considered as offense and person be protected under section 81। इतना क्लियर हो रहा है, एक नुकसान कर रहे हैं दूसरे नुकसान को बचाने के लिए, तो जो वो नुकसान कर रहा है वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि किस कैटेगरी में आएगा, डिफेंस की कैटेगरी में आएगा, ही विल गेट डिफेंस। वन क्लियर हो गया। अब समझते हैं वन हार्म टू कॉज अनदर हार्म, अब कौन सा हार्म करना है और कौन सा बचाना है ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो बड़ा सवाल है। एक हार्म को बचाने के लिए दूसरा हार्म किया है, तो कौन सा हार्म अलाउड है करना कौन सा हार्म अलाउड नहीं है करना वो समझते हैं। वन हार्म इज डन टू प्रिवेंट द अदर हार्म, तो ये वन हार्म है ना, दैट इज द स्मॉलर हार्म, स्मॉलर हार्म कॉज्ड टू प्रिवेंट बिगर हार्म, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसिटी। आदमी ऐसी सिचुएशन में है कि उसको नुकसान करना ही है, he cannot avoid the loss, he cannot avoid the harm, तो वो क्या करता है, when a situation is such that person cannot avoid the harm, then he is allowed to do the smaller harm in order to save the larger harm। तो what is the necessary situation, अगर हम situation of necessity समझे, अगर हम सेक्शन 81 की सिचुएशन को समझे तो वो क्या कह रहा है, सेक्शन 81 कह रहा है कि you can do, or if the situation is that you cannot avoid the harm, they're saying if situation is such that harm cannot be avoided, आप ऐसे सिचुएशन में कि हार्म को अवॉइड नहीं कर सकते तब क्या होगा, then out of two harms you are allowed to cause smaller harm to prevent the larger harm।
पहली सिचुएशन तो आपको क्लियर हो गई, वन हार्म कैन बी डन टू कॉज द अदर हार्म इन ऑर्डर टू, इन द केस ऑफ नेसेसिटी। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि दो हार्म है और दोनों में से आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो यू आर अलाउड टू डू द स्मॉलर हार्म इन ऑर्डर टू सेव द लार्जर हार्म। बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा नुकसान कर सकते हैं, पहला। सेकंड सिचुएशन क्या है, याद रखिएगा, वो क्रिमिनल इंटेंशन और गुड फेथ हम सबको पता है। अनदर सिचुएशन इज द हार्म you saved should not be of your personal harm, पब्लिक हार्म होने चाहिए। लार्जर हार्म अगर मैं बात करूं, लार्जर हार्म जो है वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक नेचर का, नॉट प्राइवेट नेचर। That means you cannot do the harm in order to save yourself from the larger harm, है ना? That is, one cannot do harm to protect himself from harm। खुद को बचाने के लिए किसी और को नुकसान नहीं बचा सकता, किसी और को बचाने के लिए किसी और को नुकसान बचा सकता है। one cannot cause harm to other in order to save himself, rather he can do the harm to save other person। समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई यहां तक? थ्योरेटिकली क्लियर हो गया, एनालिटिकली भी समझ लेंगे। थ्योरेटिकली क्लियर हो गया कि बड़े हार्म को बचाना है तो छोटा हार्म कौन कर सकते हैं, बट बड़ा हार्म कैसा नहीं होना चाहिए, पर्सनल हार्म नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ एंड डू द हार्म टू अदर। अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को हार्म नहीं कर सकते। हाँ, सामने दो लोग हैं, उनमें से किसी को बचाना है तो बड़े को बचा लीजिए, छोटे को बचा दीजिए। अब बड़ा छोटा एज वाइज नहीं है, इम्पैक्ट वाइज है। बड़े इम्पैक्ट को बचा लीजिए, अब छोटा इम्पैक्ट कॉज कर सकते हैं। समझते में क्या कहने की कोशिश करो। एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक्स इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन बातों कर लेंगे। चलो एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ बस, ठीक है, बस गोइंग ऑन। अचानक से यहां पर कौन आ गया, एक्स। एक्स केम इन बिटवीन। यहां पे क्या है, सपोज बोथ साइड इट्स अ वैली, इट्स अ वैली। दोनों साइड क्या है, वैली। एक साइड माउंटेन है या एक साइड वैली है, इधर मान लेते हैं इधर माउंटेन है, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ खाई है। अब एक्स आ गया बीच में। अब ड्राइवर के पास ऑप्शन है, ड्राइवर के पास क्या है, डी के पास क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट, कैन हिट, उसके ऑप्शंस देख लेते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन है हिट एक्स एंड मूव, आगे बढ़ जाए। दूसरा, टर्न लेफ्ट। तीसरा, टर्न राइट। तीन ऑप्शन है उसके पास। अब बताइए, अगर वो लेफ्ट में टर्न करेगा तो पहाड़ से टकरा जाएगा, अगर वो राइट में टर्न करेगा तो नीचे गिर जाएगी। अब इन दोनों सिचुएशन में अगर कार नीचे चली गई, बस हिट, क्या इंपैक्ट होगा? अगर बस ने हिट कर दिया तो क्या होगा, 60 to 70 पैसेंजर विल लॉस, है ना? 60 से 70 पैसेंजर अपनी जिंदगी खो देंगे।
तो उसने क्या किया, डी ने क्या किया, डी ने सीधी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी, he opted first ऑप्शन है ना, D hits X and proceed, X dies, बताइए D liable, D liable, answer is section 81 defense available। बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा नुकसान किया जा सकता है। अब फिर से समझते हैं सिचुएशन। लिख लिया सबने? चलिए सेकंड सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन ये मिस्टर एक्स अपनी कार में जा रहे हैं, यहाँ पे वाई आ गया रोड पे और यहाँ पर एक बस खड़ी, बस फुल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब एक्स ने क्या किया, एक्स in order to save y hit the bus, result into injuries to students, X plead, बताइए सेक्शन 81, उसको सेक्शन 81 प्लीड कर रहा है, बताइए। Well, he gets defense of section 81, नहीं, why? He caused the larger harm in order to save the smaller harm, है ना, not available, not a defense under section 81 as larger harm done to save स्मॉलर हार्म। उसने बड़ा नुकसान कर दिया छोटे नुकसान को बचाने के लिए, बल्कि 81 में डिफेंस कब मिलेगा, जब छोटे नुकसान करोगे बड़े नुकसान को बचाने के लिए। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स गाड़ी में जा रहा है, इधर पहाड़ है, वैली है, अचानक से वाई रोड पे आ जाता है, एक्स क्या करता है, हिट्स वाई as if he got right hit by mountain, if he got left hit by valley। बताओ, एक्स प्लीड डिफेंस, प्लीड सेक्शन 81, बताइए। वाई नॉट एक्टिव वन, क्यों? पर्सनल, कहां मिल जाएगा इसको डिफेंस? 80 में मिल सकता है, समथिंग अनएंटिसिपेटेड में, है ना, अचानक से कुछ सामने आ जाए तो एक्सीडेंट का चांस, एक्सीडेंट में तो डिफेंस मिल जाएगा, बट 81 में नहीं मिलेगा। इट्स नॉट अ केस ऑफ नेसेसिटी, है ना, नॉट अ डिफेंस अंडर सेक्शन 81। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है पूरी आईपीसी में
76 से लेके 94 एक साथ रीड करने हैं, तो हो सकता है कोई एक चीज कहीं एक जगह डिफेंस नहीं है, कहीं और डिफेंस हो। आपको राइट सेक्शन समझना होता है बस, है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह डिफेंस नहीं तो कहीं नहीं होगा, ठीक है। नॉट अ डिफेंस अंडर सेक्शन 81, तो सेक्शन 81 का डिफेंस नहीं है। क्लियर हो गया।